بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کو دوست بھائی ویر محمد رمضان بشیری المعروف جان محمد ٹیلر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی ٹیلرنگ ٹرکس۔ تو پہلے دوستو آج ہم آپ کو شلوار، جینٹس شلوار کا کاٹنے کا ایک پرفیکٹ میتھڈ بتائیں گے، جس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو شلوار کاٹنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس کپڑا ہے، تقریباً 2.5 میٹر بھر کا کپڑا ہے، اور میری جو شلوار ہے جو تقریباً 40 انچ تیار ہے، یہ دیکھیں، اور اس کا 18 پونچا ہے۔ تو سب سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شلوار کی لمبائی میں کیا کرنا ہے اور اس کی جو ہے چوڑائی میں کیا کرنا ہے، اور پونچا کیسے رکھنا ہے آپ نے۔ تو پہلے دوستو سب سے پہلے ہم لمبائی کی طرف آئیں گے۔ لمبائی میں آپ نے 3 انچ جمع کرنا ہے، جتنی بھی آپ کا سائز ہو شلوار کا، اس میں آپ نے 3 انچ جمع کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے۔ یہ ہمارے پلے ہیں، اس کو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھیں دونوں کناروں کو پکڑنا ہے آپ نے، اور آپس میں کناروں کو ملا دینا ہے۔ یہ ہم طے لگا رہے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو مزید دوبارہ پھر آپ نے ملانا ہے، یہ 4 طے بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ دونوں پلوں کی پہلے کناروں کو ملانا ہے، پھر دوبارہ پھر کناروں کو ملانا ہے، اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری یہ طے بن گئی ہے۔ اب یہ کٹنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جو کنارہ ہے اس کو ہم نے یہ کاٹنا ہے، اس کو شلوار کی لمبائی میں یا چوڑائی میں نہیں لینا، اس کو نکال دینا ہے۔ تو پھر دوستو سب سے پہلا جو اب ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شلوار ہے اس کا جو پونچا 18 ہے، ٹھیک، 18 یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے 18، یہ دیکھیں یہ 18 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ہم راؤنڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اس طرح سے 18، تو یہ 9 انچ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 9، اس کو کہتے ہیں 18، یہ کھلا 18 ہے، اور جو سلائی کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا 9 انچ تیار، ٹھیک ہے۔ یعنی 18 کا ہاف کر لیں، جب اس کو سلائی لگاتے ہیں تو یہ 9 ہو جاتا ہے، یعنی 18 کا مطلب 9 پونچا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ جو کندھے کی جو پلے کی شلوار کا جو پلہ ہے اس کی جو چوڑائی رکھنی ہے، آپ نے یہ جو 18 ہے پونچا، اس سے آپ نے زیادہ نہیں رکھنی، 18 پورا رکھ لیں، 18 سے 1 انچ کم کر لیں، 18 سے 2 انچ کم کر لیں، لیکن 18 سے آپ نے زیادہ نہیں رکھنا، کیونکہ زیادہ رکھیں گے تو وہ کندھے میں شلوار چلی جائے گی۔ اس لیے آپ نے یہ خیال رکھنا جتنا بھی آپ کا پونچا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کھلا گھیرا رکھنا ہے تو آپ 18 رکھ لیں، اگر تھوڑا سا کم رکھنا ہے تو 17 رکھ لیں، اگر اس سے بھی کم رکھنا ہے تو 16 رکھ لیں۔ عام بڑی شلوار جو ہے وہ آپ بالکل ٹینشن مکا کے 16 پونچا ڈال سکتے ہیں، یہ والا، ٹھیک ہے۔ 17 ڈال سکتے ہیں، آپ 18 ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم آپ 16 پونچا ڈال دیجئے، بڑی شلوار میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارے پاس کپڑا جو کھلا ہے، اس لیے ہم نے یہ جو 18 پونچا ہے اس کو ہم پورا ہی ڈالیں گے، کیونکہ میتھڈ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ 18 ہم نے پونچا پورا ڈال لینا ہے یہ پلوں کے لیے۔ آپ یہاں 17 بھی ڈال سکتے ہیں، 16 بھی ڈال سکتے ہیں، اپنی مرضی، لیکن ہم نے یہاں پہ چونکہ کپڑا زیادہ ہے اور جو کسٹمر ہے اس نے گھیر زیادہ مانگا، اس لیے ہم نے پورا کا پورا 18 ڈالنا ہے، 18 سے زیادہ نہیں ڈالنا۔ تو یہ میں نشان لگانے لگا ہوں، یہ دیکھیں 18 انچ پر یہ نشان لگ گیا ہے، اور اسی طرح سے دوسری سائڈ سے یہ نشان لگا رہا ہوں میں۔ اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں آپ نے ملا لینا ہے۔ شلوار کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ سب سے پہلا جو ٹرک ہے، طریقہ ہے، یہی ہے کہ ہم نے جو پونچا رکھنا ہے وہ کتنا رکھنا ہے۔ تو یہ پیارے دوستو یہ ہمارا جو ہے پونچا یہ کٹ گیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی لمبائی آپ نے ماپ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے سیدھا رکھ لیں اس طرح سے، تو 18 پونچا ہماری جو لمبائی ہے۔ اب لمبائی میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ لمبائی میں آپ نے 3 انچ ایڈ کرنا ہے، یعنی لمبائی ہے 40، اس میں آپ نے 3 انچ جمع کرنا ہے، تو یہ ہماری ہو جائے گی لمبائی 43 انچ۔ تو ہم 43 پہ نشان لگائیں گے،
ये देखिए पूरा 43 आ रहा है, ठीक है। इधर से भी देख लेते हैं, यहाँ से भी पूरा 43 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काटने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब इसको हम सेंटर से 2 कर लेंगे। दोनों साइडों के पल्ले तैयार हो गए हैं। ये हमारी शलवार के जो पल्ले तैयार हो गए हैं। फिर आपसे बताता हूँ कि आपने 18 से कम भी रख सकते हैं, 17 रख लें, 16 रख लें, 18 में से ज़्यादा है। लेकिन उसूल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसूल है आप 18 तक रख सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं रखने। 16 पहुँचा है तो आपने 16 से ज़्यादा नहीं रखने, 14 पहुँचा है तो 14 से ज़्यादा आपने नहीं रखना। इस पल्लों की चौड़ाई जितना पहुँचा आप उससे कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये हमारे पहुँचे कट गए हैं। अब हमने आना है कुंदों की तरफ। ये हमारा जो कपड़ा है, ये जो बकिया बचा है, इसको उतारने के बाद ये हम दोबारा इसको बिछाएंगे। तो फिर दोस्तों हमने पहुंचे उतार ली है। अब हमने जो कुंदों की चौड़ाई रखनी है उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कि आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये पहुंचे को देखना है। पहुंचा जितना भी हो, 9 हो, 8 हो, 10 हो, ठीक है, उसको आपने शलवार की लंबाई में से माइनस कर देना है। हमारे पास है 18 का हाफ बनता है 9, यानी 9 इंच हम शलवार की लंबाई से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 31 इंच, ठीक है। अब ये है देखिए 31 इंच, ठीक है जी। अब 31 इंच का हाफ हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 15.5 इंच, ठीक है जी। अब हम जब ये आपने रखना है, यानी आपने ज़हन में रख लेना कि 15.5 इंच हमने इस पल्ले की चौड़ाई उतारनी है। अब चूँकि देखें 18 में से 9 जो है इसका लंबाई में से निकल गया तो 31, तो हम ये दोनों पल्लों का इकट्ठा यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यानी 31 हमें चाहिए, ये फोल्ड होके खुद ब खुद ही 15.5 हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी लगा लेते हैं, ले जी, ठीक है। अब इसको भी हमने एक लाइन ड्रॉ करके इसको उतार लेना है। ये हमारी जो कुंदे हैं उनकी चौड़ाई आ गई है, ठीक है। अब हमने इसको काट लेना है, यानी लंबाई में से आपने पहुंचे को माइनस कर देना है और जो बचे वो आपने ये जो पल्ले हैं ये कुंदे के आपने उतार लेने हैं। अब हमने आपको क्या करना है कि ये जो चौड़ाई है इसको हमने प्रेस कर देना है। ये देखें इस तरह से, ये देखिए, ठीक है जी। अब ये देखें आपने इनको मिला दिया आपस में। अब ये हमारी बन गई है चौड़ाई। यहां तक बात आपको समझ आ गई। इसको आपने इस्त्री लगा लेनी है। तो फिर दोस्तों इस्त्री लग गई है। अब आपको अगला स्टेप बताते हैं कि हमने लंबाई किस तरह से रखनी है कुंदे की। तो फिर दोस्तों किनारे अपनी तरफ कर लें या दूसरी तरफ कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ से आप कर सकते हैं शलवार के कुंदों की जो रखने लंबाई रखते वक्त, ठीक है। ये बन रही है हमारी 6 सिलाइयों वाली शलवार, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब ये देखें, इसको आपने यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब जब कुंदे हैं इनकी जो चौड़ाई है लंबाई है, इसमें हमने 3 की बजाय 3.5 ऐड करना है। यानी हमारी 40 इंच लंबाई थी, फिर आपको बता देता हूँ, ये हमारी 40 इंच लंबाई थी, इसमें 18 पहुंचा था, ठीक है। 40 में से 18 का हाफ 9 माइनस किया तो 31 को हमने काट के ये हमारे 2 पल्ले बन गए, ठीक है। अब लंबाई में हमने क्या करना है कि 40 में 3.5 इंच हमने ऐड कर देना है। तो ये देखिए लंबाई है हमारी 40, ठीक है जी। 3.5 ऐड करना है, 1 2 3 और 3.5 यानी 43.5 इंच पे हमने निशान लगा देना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई।
आसन पे आ जाते हैं। आसन देखें, आसन आपने छाती का हाफ रख लेना है, ठीक है, जितनी छाती हो, लेकिन 20 से ज़्यादा आपने नहीं रखनी। अगर 42 छाती आ जाए 21 बनती है, लेकिन आपने 20 से ज़्यादा नहीं रखनी। 40 तक आपने रखनी है हाफ, ठीक है। 40 से ऊपर अगर 41 हो जाए, 42 हो जाए, तो आपने 20 से ज़्यादा नहीं करनी। मेरी छाती मतलब 40.5 इंच छाती है, तो इसका 20 बनता है, मैं 20 पे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ये कुंदा। ये जो कुंदे की चौड़ाई है, ये कैसे आपने रखनी है, ये समझने वाली बात है कि यहाँ से जो हम रखेंगे तो वो आपने कितना रखना है, ये समझने वाली बात है। आए मैं आपको तफसील के साथ इसको बताता हूँ ये कितना रखना है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, हमने फिर दोबारा पौंचे पे चले जाना है। ये हमारा जो पौंचा हमने काटा हुआ था पहले, ठीक है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से दिखाएं ज़रा, ये हमने काटा था, ये देखें 18 इंच, ठीक है, ये देखें 18 है। अब इसको आपने 2 इंच पीछे आ जाना है, ठीक है। ये हमारा है 18 पौंचा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ये 18 पौंचा इस लाइन पे, ठीक है। अब ये देखें पौंचा हमारा 18 मैंने रखा हुआ। अब मैंने 2 इंच मजीद पीछे आ जाना है। ये 2 इंच क्या है, जब हम इसको सिलाई लगाएंगे 1 इंच इधर से चला जाएगा और 1 इंच जो है इधर से चला जाएगा, ठीक है। हाफ इंच इसका और हाफ इंच जो कुंदा साथ डलेगा उसकी सिलाई, यानी टोटल दोनों कुंदे की सिलाई और पौंचे की सिलाई जो मिलकर बनेगी वो 1 इंच यहाँ से माइनस हो जाएगी इसमें से, और 1 इंच इधर हो जाएगी माइनस। तो ये हो जाएगी इसलिए मैंने ये जो है ना 2 इंच इसमें माइनस किया, दोनों सिलाइयाँ जो लगेंगी यहाँ पे, ठीक है। ये समझ, क्योंकि सिलाई के बगैर ये नहीं बनेगी। एक सिलाई इधर लगेगी, आधा इंच इधर से लेगा कपड़ा चलेगा और आधा इंच चलेगा वो कुंदे में से, ठीक है। यानी एक इधर से माइनस होगा और 1 इंच ही उधर से माइनस होगा। ये हमने यहाँ से पहले ही माइनस करना है, यानी हमारा टोटल 18 पहुंचा है, करीब करें जरा 18 पहुंचा है, ठीक है। इसमें से हमने 2 इंच पीछे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने पढ़ना है, यानी 2 इंच पीछे आके 18 तक पढ़ना है, ठीक है। 16, 17, 18 यहाँ पहुंचाएगा और 19, ठीक है। 3 इंच बनता है। इसमें हमने इसका जो हाफ करना है ना, हमने 3 का 1.5 और आधा इंच हमने दबा लेना है, ठीक है। क्या करना है, यानी 16 से आपने पढ़ना है, 17, 18 और 19, ठीक है। 3 इंच बन रहा है। और यहाँ पे आप जो रखना है तो 3 आ गया, 3 का आपने हाफ 1.5 रख लेना है और थोड़ा सा आपने मजीद यहाँ से रख लेना है दबाव, ठीक है। ये देखिए ये उसूल है। फिर आप समझ लें, ये जितना भी आपने पौंचा रखा है, मैंने 18 रखा है, आप 16 रख लें, 17 रख लें, जितना भी आपने ये पौंचा रखा है इसको आपने देखना है ये रखा कितना है। वहां से आप पीछे 2 इंच मजीद आ जाए और यहाँ से आपने पढ़ना है, ठीक है। 1, 2 ये पौंचा आगा और 1 इंच मजीद ऊपर कर लेना है, ठीक है। 3 का हाफ आपने कर देना है और आधा इंच मजीद आप दबाव डाल दें इसमें, यानी 3 का हाफ 1.5 और आधा इंच दबाव कर ले 2 इंच। तो यहाँ पे आपने 2 इंच का निशान लगा देना है। ये है इसके रखने का तरीका, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इस लाइन को आपने इसके साथ मिला देना है, कुंदे के साथ, ठीक है। ये ठीक है। अब ये हमारे कुंदे की आसन भी तैयार हो गई है और हमारे कुंदे की लंबाई भी तैयार हो गई है, और ये जो कुंदा, ये इसकी जो चौड़ाई है कुंदे की, इसका भी हमने मेथड जान लिया है कि ये कैसे रखना है। यहाँ से काटेंगे हम, कट गया। अब इसको मजीद हमने ऊपर उठा लेना है। पल्ले के ऊपर पल्ला रख लेना है, ठीक है। और इस्त्री करनी है तो कर लें, फायदा ये होगा कि पल्ले बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ऊंच नीच निकल जाएगी। अब इसको आपने यहाँ से काट लेना है, ठीक है जी। सेंटर से काट लें पहले, ये आप अपनी तरफ करके भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा कपड़ा ज़ाया होगा, लेकिन कोई मसला नहीं, शलवार में फेर ज़्यादा खुला है, कोई मसला नहीं, इस तरह चल जाता है, ठीक है। आप इसको अपनी तरफ ले जाके इस तरह से भी काट सकते हैं,
तो प्यारे दोस्तों ये हमारी शलवार के कुंदे कट चुके हैं, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारे कुंदे हो गए और ये हमारे पहुंचे हो गए और इन कट चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे दोस्तों ये था शलवार काटने का मुकम्मल तरीक़ाकार, किस तरह से आपने लंबाई रखनी है, किस तरह से आपने कुंदों की चौड़ाई रखनी है और किस तरह से आपने शलवार के जो पहुंचे के नीचे कुंदे की चौड़ाई बनती है छोटी, वो आपने किस तरह से रखनी है। इंशाल्लाह बगौर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।